ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شمشیر کے ساتھ اس کے 5-6 آدمی بھی ہر وقت موجود ہوتے تھے، جو نوری کو گھیر کر کھڑے ہو جاتے اور شمشیر اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا اس کے قریب آتا۔ کبھی اس کا دوپٹہ ہاتھ میں لپیٹنے لگ جاتا اور کبھی اس کی لمبی زلفوں کو چھیڑنے لگ جاتا۔ نوری بیچاری کبھی اپنا دوپٹہ سنبھالتی اور کبھی اپنے بالوں کو سمیٹتی، اور شمشیر اس کی ان اداؤں پر وحشیانہ کہکہے لگاتا اور اپنے آدمیوں کی طرف دیکھتا، جو اس کے ہنسنے پر ہنس دیا کرتے۔ وہ تو اپنے مالک کے حکم کے غلام تھے، جیسا ان کو شمشیر کہتا وہ ویسے ہی کرتے۔ مگر نوری اب اس روز روز کی بدماشیوں سے تنگ آ گئی تھی۔ ایک بار اس نے رضا سے اس بات کا ذکر کیا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ جو شمشیر بڑا چودھری بنا پھرتا ہے، اگر بڑے چودھری کو اس کی کرتوتوں کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ جانتا بھی ہے کہ بڑے چودھری صاحب اس کا کیا حشر کریں گے۔ تو رضا نوری سے کہنے لگا، وہ تیرا راستہ ہی روکتا ہے نا، کون سا تجھے اٹھا کر گھر لے گیا ہے؟ اینی سونی نہیں تو کہ اب نکے چودھری کا تیرے پہ دل آ جائے اور وہ تیرے ساتھ ہی شادی رچا لے۔ اور نوری بے چارگی سے اس کا چہرہ تکنے لگی کہ یہ وہی رضا تھا جو ہر قدم پر اس کا خیال رکھتا تھا۔ مگر وہ کرتی بھی تو کیا کرتی؟ بانو بیگم تو اس کی سوتیلی اماں تھی، جنہوں نے کبھی بھی اس کی کوئی بات نہیں سنی تھی، اور باپ تو اس کا ویسے ہی چودھریوں کا غلام تھا۔ ایک اس کا بھائی رضا ہی تھا جو اس کی تھوڑی بہت بات مان لیا کرتا تھا، مگر اس کے بھی کان بانو بیگم بھرتی رہتی تھی، جس کا اثر اب اسے نظر آنے لگ گیا تھا۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ اب وہ اس مصیبت کا خود ہی کوئی نہ کوئی حل نکال لے گی۔ ایک دن نوری اسکول سے واپس آ رہی تھی، تپتی دوپہر میں۔ اس دن وہ سڑک پر اکیلے ہی گھر چلتے ہوئے جا رہی تھی۔ گرمی کی شدت اتنی تھی کہ اس کا حلق سوکھنے لگا تھا۔ تبھی وہ درخت کے پاس پہنچی، اپنا بیگ اتار کر تنے کے ساتھ رکھا، نلکا چلایا، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، تھوڑا سا پانی پیا اور کچھ دیر سانس لینے کے لیے درخت کے ساتھ بندھے ہوئے جھولے پر بیٹھ گئی۔ شمشیر بھی زمینوں پر ہی تھا۔ تبھی اس کی نظر نوری پر پڑی اور وہ اپنے آدمیوں کو لے کر اس طرف آ گیا۔ نوری اپنی ہی مستی میں بیٹھی تھی۔ وہ اپنے آدمیوں کو لیتا ہوا اس کے قریب گیا۔ نوری نہ جانے کن سوچوں میں گم بیٹھی تھی، اس کو اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ شمشیر اس کے کس قدر قریب پہنچ گیا تھا۔ شمشیر نے نوری کی پسینے سے بھیگی ماتھے پر آئی ہوئی ایک لٹ کو اپنی انگلی سے پیچھے کیا۔ تبھی نوری ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اٹھتے ہوئے وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ تبھی شمشیر نے اسے اپنے بازوؤں سے تھاما تو وہ کرنٹ کھا کر اس سے دور ہٹی اور اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے ادھر سے جانے لگی۔ مگر شمشیر نے ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کا راستہ روک لیا تھا، اور وہ نوری سے کہنے لگا، اب تو بڑی ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی بچوں والے کھیل ہی کھیلتی ہے۔ تو سیانی ہے، اب تو کسی کے ساتھ گھر بسا کر کسی غریب کا بھلا ہی کر دے۔ اور سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا آگے کی طرف بڑھا۔ نوری کو اس کے ارادے آج کچھ خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ اس کی روز روز کی بدماشیوں سے تنگ آ چکی تھی۔ تبھی فضا میں ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی اور شمشیر اپنی جگہ پر مبہوت سا کھڑا رہ گیا۔ اس کے گال پر نوری کے زناٹے دار تھپڑ کے نشان اب واضح نظر آ رہے تھے، اور شمشیر کے چہرے پر حیرانگی تھی کہ پہلی بار اسے کسی لڑکی نے اس طرح سے تھپڑ دے مارا تھا، اور وہ بھی اس کے آدمیوں کی موجودگی میں۔ اس کو یہ توقع بالکل نہیں تھی کہ نوری اس پر سیدھا سیدھا ہاتھ ہی اٹھا دے گی۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور نوری سہم کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ شمشیر نے اپنی انگلی سے اس ڈری ہوئی لڑکی کو تنبیہ کی کہ سن لڑکی، تیری بھلائی اب اسی میں ہے کہ تو شرافت سے میرے ساتھ شادی کر لے۔ اور وہ جو سہم کر کھڑی تھی، اس نے ایک نظر شمشیر کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور اس پر تھوک کر کہنے لگی کہ تیرے سے شادی کرتی ہے میری جوتی۔ بس بہت لحاظ کر لیا میں نے تیرا۔ میں تو اس لیے چپ تھی کہ تو وڈیروں کا منڈا ہے، اور اوپر سے اماں بھی میری تیری حویلی میں کام کرتی ہے۔ لیکن چودھری صاحب، اس کا یہ مطلب تھوڑے ہی نہ ہے
کہ تو राह आते जाते मेरे पर नजर रख के बैठे। तूने मुझे कोई आवारा और बदचलन लड़की समझ रखा है क्या, जो मैं तेरी 2 टके की बातों से डर जाऊंगी। और आदमियों की तरफ इशारा करके कहने लगी कि ये जो किराए के गुंडों के लिए तू पूरे पिंड में बड़े गौर के साथ मंडलाता फिरता है, ये लोग तेरी इज्जत करते हैं। तो सुन ले छोटे चौधरी, मेरी नज़र में तेरी 2 कौड़ी की इज्जत भी नहीं है। बड़ा आया अपने पैसे का रोब मुझ पर झाड़ने वाला। शमशेर ने नूरी की बात सुनी और आगे बढ़कर उसे गर्दन से दबोच लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे ही आदमियों के सामने जलील करने की? ये जो बकवास तूने की है ना आज मेरे साथ, मैं तुझे बता रहा हूँ, तू पछताएगी, बहुत पछताएगी। और नूरी भी अकड़ कर अब उसके सामने खड़ी थी। तभी दूर से गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। सबका ध्यान उस गाड़ी की तरफ हुआ तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। किसान खेतों में हल चरा रहे थे। गांव की सुबह का मंजर भी अलग दिल को सुकून देने वाला होता है, जहां शहरों जैसी आलूदगी से पाक फिजा एक अलग ही ताजगी का एहसास दिलाती है। सुबह होते ही सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। मर्द अपने अपने जानवरों को हाँकते हुए खेतों की तरफ चल पड़े थे और घर की औरतें घर के कामों में लग गई थीं और बच्चे अपने अपने बैग संभाले स्कूल की तरफ चल पड़े थे। स्कूल के रास्ते में एक बहुत बड़ा दरख्त भी आता था, जिसके साथ लड़कियों ने रस्सियां बांधकर झूले बना रखे थे और उसी दरख्त के नीचे एक नलका भी लगा हुआ था। गर्मियों में तो इधर खूब रौनक लगती थी, जब गर्मी से सताए लोग आराम करने की गर्ज से इस दरख्त की छांव में बैठते और लड़कियां भी मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में जमा होती। छोटी बच्चियां आते जाते इस दरख्त पर झूला झूलती थीं। उन्हीं लड़कियों में एक नूरी नाम की मासूम सी लड़की भी थी, जो इन सब में अलग नजर आती थी। वो थी ही इंतहाई खूबसूरत। नूरी की अम्मा उसकी पैदाइश के वक्त ही वफात पा गई थी और उसके अब्बा ने बानो बेगम से दूसरी शादी कर ली थी। कहने को तो उसकी सौतेली माँ ने उस पर कभी कोई जुल्म नहीं ढाया था, मगर कभी माँ जैसा प्यार भी तो नहीं दिया था। जब नूरी ज़रा सयानी हुई तो बानो बेगम ने घर की सारी जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर डाल दी। खुद तो वो गांव के बडेरे के घर काम करती थी और नूरी घर का सारा काम संभालती थी, लेकिन अक्सर जब हवेली में कोई त्यौहार वगैरह होता तो उसकी सौतेली अम्मा नूरी को भी अपने साथ ले जाती, ताकि वो हवेली के कामों में बानो बेगम का हाथ बटा सके। नूरी ने कभी अपने अब्बा से बानो बेगम की कोई शिकायत नहीं की थी। जब उसके अब्बा को ही कुछ नज़र नहीं आता था तो वो किसी से क्या शिकायत करती। लेकिन एक हसरत उसके दिल में हमेशा से रही थी कि जैसे बानो बेगम उसके छोटे भाई रज़ा से प्यार करती थी, वैसे ही वो उसके भी नाज नखरे उठाएं, उसको भी डांट डपट कर खाना खिलाए और उसकी भी छोटी छोटी मासूम ख्वाहिशात को पलक झपकते ही पूरा करे। उसका सारा बचपन इसी एहसास कमतरी में गुजर गया था। अब्बा को तो अपनी ज़मीनों से ही फुर्सत नहीं होती थी, जहाँ वो सारा दिन चौधरियों के इशारों पर काम करता रहता, और बानो बेगम को तो अपने बेटे के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता था। नूरी सुबह सवेरे उठती, सारे घर की सफाई करती और अपने भाई रज़ा को, जो उससे 5 साल छोटा था, उसको लेकर स्कूल की तरफ चल पड़ती। ये दरख्त काफ़ी पुराना था जिस पर वो स्कूल आते जाते झूला झूलती थी, और रज़ा भी अपना बैग उधर ही दरख्त के तने के साथ रखकर अपनी बहन को झूला झूलते हुए देखता और अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलता कूदता। ऐसे ही खेलते कूदते नूरी जवान हो गई थी और वो बेइंतहा खूबसूरत भी हो गई थी। उसकी स्याह चमकदार आँखें, गुलाबी खिलती हुई रंगत, तीखी सी नाक और फिर भरे भरे से उनाबी लब बिल्कुल उसकी मरहुमा माँ जैसे थे। उसने तो कभी अपनी माँ को नहीं देखा था, मगर आसपास की जो औरतें उसकी माँ को जानती थीं, वो तो यही कहा करती थी कि नूरी, तू तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, तेरी माँ भी ऐसे ही खूबसूरत थी। वो बिलाशुबा बेहद हसीन थी। उसकी स्याह खमदार लंबी जुल्फ़ें किसी सावन की बदली मालूम होती थी, मगर उसके मुकाबले में रज़ा एक कबूल सूरत सा सांवली सी रंगत का लड़का था
तो बानो बेगम को तो ये बिल्कुल भी गवारा ना था कि लोग नूरी को इस तरह से दिल खोल कर तारीफ करते, जबकि रज़ा को कोई पूछता भी ना था। उसने बड़े जतन किए थे कि अपने बेटे को भी खूबसूरत बना सके। वो कभी उसके लिए कोई वजीफ़ा करती, कभी कोई क्रीम पाउडर लाकर उसको मलती, मगर नूरी तो कुदरती खूबसूरत थी और थी भी लड़की, और रज़ा के साथ उसका कोई मुकाबला था ही नहीं। नूरी 10वीं जमात में पढ़ चुकी थी और उसने कद काट भी अच्छा खासा निकाल लिया था। वो सब लड़कियों में दूर से ही पहचानी जाती थी। दोनों बहन भाइयों में जो थोड़ी बहुत मोहब्बत थी, वो बानो बेगम ने रज़ा के दिमाग में नूरी के खिलाफ बातें करके ख़त्म कर दी थी। नूरी से छोटा होने के बावजूद भी उसने अच्छा खासा कद काट निकाल लिया था, और गांव के लड़के तो वैसे भी जल्दी जवान हो जाते हैं। उसने भी नूरी पर ख्वामा का रोब डालना शुरू कर दिया था। गांव के वडेरे का बेटा शमशेर अक्सर ही अपनी बड़ी सी गाड़ी में अपने कुछ आदमियों के साथ गांव के इर्द गिर्द मंडलाता रहता था और घूम घुमाकर उस दरख्त के नीचे आकर रुक जाया करता था जहां बहुत सी लड़कियां झूला झूलती थीं। रज़ा और नूरी ने हमेशा उससे इज्जत और एहतराम से बात की थी, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि उनकी अम्मा शमशेर की हवेली में काम करती हैं। इसीलिए शमशेर की गाड़ी की आवाज़ सुनते ही वहाँ मौजूद सब बच्चे अलर्ट हो जाते, जबकि शमशेर की गाड़ी से उतरते ही नूरी और रज़ा उसको सर झुकाकर सलाम करते, और शमशेर अपनी मूँछों को ताव देता हुआ वहाँ मौजूद हर लड़की को बड़े गौर से देखा करता। रज़ा ने इस बात का कभी ध्यान नहीं दिया था। उसको कभी शमशेर की बुरी नज़र का अंदाज़ा नहीं हो सका था। अब तो रज़ा भी बड़ा हो चुका था और उसने बानो बेगम से कह दिया था कि अब वो स्कूल नहीं जाएगा, बल्कि अब्बा के साथ ही चौधरियों की ज़मीनों पर काम करेगा। और बानो बेगम भी आराम से मान गई थी, क्योंकि वो भी जानती थी कि रज़ा ने पढ़ लिख कर कौन सा कोई नौकरी कर लेनी है। अगर कोई काम करना है तो वो वडेरों की ज़मीनों पर ही तो करना है, क्योंकि इस गांव में शुरू से ही ऐसा होता आया था। जो निचले तबके के लोग थे वो चौधरियों की ज़मीनों पर काम करके अपना गुजारा करते थे, जबकि नूरी को पढ़ने लिखने का शौक़ था। उसने अपनी पढ़ाई के अलावा बानो बेगम और अपने अब्बा से किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं की थी, इसलिए उसके अब्बा ने उसको स्कूल से नहीं उठाया था। वो वैसे ही अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जाती और वापस आकर वैसे ही घर के कामों में लग जाती, और कभी कभार बानो बेगम के साथ हवेली भी चली जाया करती, मगर उसको हवेली के रिहायशी हिस्से में जाने की इजाज़त न थी। बानो बेगम ने सारा घर भी नूरी के हवाले किया हुआ था। बानो बेगम को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि नूरी क्या करती है। उसने बस नूरी को एक बात कह दी थी कि घर का सारा काम बस अब तेरे ज़िम्मे है, वो भले तू दिन में कर या रात को। इससे बानो बेगम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। नूरी जवान हो चुकी थी, खूबसूरत तो वो बेहद थी। स्कूल जाकर उसका लहजा भी बाकी लड़कियों से ज़्यादा दिलकश हो गया था। उसके बोलने का अंदाज़ सब लड़कियों से ही अलग था। उसके बोलने से मालूम ही नहीं होता था कि वो एक गरीब बाप की बेटी है जो चौधरियों की ज़मीनों पर काम करता है। और शमशेर को भी वो अच्छी लगने लगी थी। शमशेर का क्या था, उसको तो गांव की हर लड़की खूबसूरत अच्छी लगती थी, और वो सारा सारा दिन उस लड़की के पीछे पीछे फिरता। लड़कियां बेचारी भी क्या कर सकती थी, आखिर था तो वो वडेरे का बेटा ही। सभी उससे डरती थी और उसके आने पर उसके सामने नज़रें झुकाकर खड़ी हो जाती थी। कभी किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो शमशेर को उसकी गंदी नज़रों का जवाब दे सके। और जब शमशेर की नज़र नूरी पर पड़ी थी तो वो इसके पीछे पड़ गया था। वो नूरी को स्कूल आते जाते रास्ते में रोक लेता और अपनी मूँछों को घुमाते हुए उसको बड़े गौर से देखा करता। पहले तो नूरी चुपचाप सहमी खड़ी रहती, क्योंकि उसको मर्दों की गंदी नज़र का अंदाज़ा नहीं था, मगर जब वो जवान हुई तो उसको शमशेर की निगाहें चुभने लगी थी। वो जब भी शमशेर की गाड़ी को आता देखती तो एक तरफ सहम कर खड़ी हो जाती। अब तो रज़ा भी उसके साथ नहीं होता था, वो भी ज़मीनों पर काम करने लग गया था। नूरी के साथ मौजूद लड़कियां जानती थीं कि शमशेर की निगाह नूरी पर होती है, इसीलिए वो शमशेर को आता देखकर इधर उधर भाग जाती। लेकिन नूरी कहाँ भागती, वो जहाँ भी जाती शमशेर उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता और कहता,
पगली, तू तो बड़ी सोनी हो गई है। लेकिन नूरी को उससे डर लगता था। जैसे ही शमशेर उसकी तरफ बढ़ता तो वो 2 कदम पीछे हट जाती और कहती, छोटे चौधरी साहब, आप इस तरह से मेरा रास्ता ना रोका करें, मुझे डर लगता है। शमशेर अपनी आंखों को गोल करके उसके और करीब होता और कहता, जलिए, डरती क्यों है? तुझ पर तो मेरी खास नज़र है, और जिस पर मेरी नज़र पड़ जाए उसको डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसको तो अपनी किस्मत खोलने का इंतज़ार करना चाहिए। और तू पागल है जो मुझसे डरती फिरती है। मुझे इतने सोने मुखड़े पर ये डर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तो मुझसे ना डरा कर। और एक कहकहा लगाकर हंस देता। नूरी उसकी बस इतनी ही बात सुनती और उसके सामने से भागती हुई अपने घर की तरफ चली जाती। शमशेर दूर तक उसको जाता हुआ देखता और अपने आदमियों की तरफ देखकर वहशी अंदाज में हंसने लगता। कभी किसी लड़की में हिम्मत नहीं हुई थी कि वो शमशेर की किसी भी बात का जवाब दे सकती, क्योंकि सभी उसके मिजाज से वाकिफ थे। वो एक इंतहाई बदमाश किस्म का आवारा लड़का था, हमेशा मूंछों को ताव देता रहता था। उसके बरक्स शमशेर के अब्बा चौधरी मुराद अली, जो गांव के वडेरे थे, वो तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उनके लहजे में एक रोब और दबदबा था और पूरा गांव उनसे डरता था। वो बहुत रहमदिल और लोगों की मदद करने वाले इंसान थे। वो लाठी के सहारे चलते और जहाँ भी जाते लोग उनकी इज्जत व एहतराम में खड़े हो जाते और आगे बढ़कर उनका हाथ चूमते। यही तो वजह थी कि कभी किसी ने उनसे शमशेर की शिकायत नहीं की थी, क्योंकि चौधरी मुराद अली का गुस्सा बहुत ख़तरनाक होता था। वो भी शमशेर की छोटी हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे, मगर उसके बावजूद भी न जाने क्यों उन्होंने कभी अपने बेटे को समझाया नहीं था, बल्कि चौधरी मुराद अली की इसी ढील ने तो शमशेर को सर पर चढ़ा दिया था। ये तो रोज़ का मामूल ही बन गया था कि शमशेर नूरी के रास्ते में खड़ा होता। वो जब भी स्कूल जाती या स्कूल से वापस आती तो शमशेर को अपना रास्ता रोके हुए देखती। शमशेर के साथ उसके 5-6 आदमी भी हर वक्त मौजूद होते थे, जो नूरी को घेर कर खड़े हो जाते और शमशेर अपनी मूंछों को ताव देता हुआ उसके करीब आता। कभी उसका दुपट्टा हाथ में लपेटने लग जाता और कभी उसकी लंबी जुल्फों को छेड़ने लग जाता। नूरी बेचारी कभी अपना दुपट्टा संभालती और कभी अपने बालों को समेटती, और शमशेर उसकी इन अदाओं पर वहशियाना कहकहे लगाता और अपने आदमियों की तरफ देखता, जो उसके हंसने पर हंस दिया करते। वो तो अपने मालिक के हुक्म के गुलाम थे, जैसा उनको शमशेर कहता वो वैसे ही करते। मगर नूरी अब इस रोज़ रोज़ की बदमाशियों से तंग आ गई थी। एक बार उसने रज़ा से इस बात का जिक्र किया। वो कहने लगी, ये जो शमशेर बड़ा चौधरी बना फिरता है, अगर बड़े चौधरी को उसके करतूतों के बारे में पता चल गया तो वो जानता भी है कि बड़े चौधरी साहब उसका क्या हशर करेंगे। तो रज़ा नूरी से कहने लगा, वो तेरा रास्ता ही रोकता है ना, कौन सा तुझे उठाकर घर ले गया है? एन्नी भी सोनी नहीं तो कि अब निके चौधरी का तेरे पे दिल ही आ जाए और वो तेरे साथ ही शादी रचा ले। और नूरी बेचारगी से उसका चेहरा तकने लगी कि ये वही रज़ा था जो हर कदम पर उसका ख्याल रखता था। मगर वो करती भी तो क्या करती। बानो बेगम तो उसकी सौतेली अम्मा थी, जिन्होंने कभी भी उसकी कोई बात नहीं सुनी थी, और बाप तो उसका वैसे ही चौधरियों का गुलाम था। एक उसका भाई ही रज़ा ही था जो उसकी थोड़ी बहुत मान लिया करता था, मगर उसके कान भी बानो बेगम भरती रहती थी, जिसका असर अब उसे नज़र आने लग गया था। उसने ठान लिया था कि अब वो इस मुसीबत का खुद ही कोई ना कोई हल निकाल लेगी। एक दिन नूरी स्कूल से वापस आ रही थी, तपती दोपहर में। उस दिन वो सड़क पर अकेले ही घर चलते हुए जा रही थी। गर्मी की शिद्दत इतनी थी कि उसका हलक सूखने लगा था। तभी वो दरख्त के पास पहुंची, अपना बैग उतारकर तने के साथ रखा, नलका चलाया, मुंह पर पानी के छींटे मारे, थोड़ा सा पानी पिया और कुछ देर सांस लेने के लिए दरख्त के साथ बंधे हुए झूले पर बैठ गई। शमशेर भी ज़मीनों पर ही था। तभी उसकी नज़र नूरी पर पड़ी और वो अपने आदमियों को लेकर इस तरफ आ गया। नूरी अपनी ही मस्ती में बैठी थी
वो अपने आदमियों को लेता हुआ उसके करीब गया। नूरी न जाने किन सोचों में गुम बैठी थी। उसको अंदाज़ा ही ना हो सका कि शमशेर उसके कितने करीब पहुंच चुका है। शमशेर ने नूरी की पसीने से भीगी माथे पर आई हुई एक लट को अपनी उंगली से पीछे किया। तभी नूरी एक झटके से उठ खड़ी हुई। उठते हुए वो लड़खड़ा गई थी। तभी शमशेर ने उसे अपने बाजू से थामा तो वो करंट खाकर उससे दूर हटी और अपना दुपट्टा संभालते हुए उधर से जाने लगी। मगर शमशेर ने हमेशा की तरह आज भी उसका रास्ता रोक लिया था और वो नूरी से कहने लगा, अब तो तू बड़ी हो गई है, लेकिन अभी भी बच्चों वाले खेल ही खेलती है। तू तो सयानी है, अब तो किसी के साथ घर बसाकर किसी गरीब का भला ही कर दे। और सीने पर हाथ रखता हुआ आगे की तरफ बढ़ा। नूरी को उसके इरादे आज कुछ खतरनाक लग रहे थे। वो उसकी रोज रोज की बदमाशियों से तंग आ चुकी थी। तभी फिजा में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी और शमशेर अपनी जगह पर मबहूत सा खड़ा रह गया। उसके गाल पर नूरी के जन्नाटेदार थप्पड़ के निशान अब वाज़ेह नजर आ रहे थे और शमशेर के चेहरे पर हैरानगी थी कि पहली बार उसे किसी लड़की ने इस तरह से थप्पड़ दे मारा था, और वो भी उसके आदमियों की मौजूदगी में। उसको ये बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि नूरी उस पर सीधा सीधा हाथ ही उठा देगी। वो गुस्से से आगे बढ़ा और नूरी सहम कर एक तरफ खड़ी हो गई। शमशेर ने अपनी उंगली से उस डरी हुई लड़की को तंबीह की कि सुन लड़की, तेरी भलाई अब इसी में है कि तू शराफत से मेरे साथ शादी कर ले। और वो जो सहम कर खड़ी थी, उसने एक नज़र शमशेर को सर से पांव तक देखा और उस पर थूक कर कहने लगी कि तेरे से शादी करती है मेरी जूती। बस बहुत लिहाज कर लिया मैंने तेरा। मैं तो इसलिए चुप थी कि तू वडेरों का मुंडा है और ऊपर से अम्मा भी मेरी तेरी हवेली में काम करती है। लेकिन चौधरी साहब, इसका ये मतलब थोड़ा ही ना है कि तू राह आते जाते मेरे पे नज़र रख के बैठे। तूने मुझे कोई आवारा और बदचलन लड़की समझ रखा है क्या, जो मैं तेरी 2 टके की बातों से डर जाऊंगी? और आदमियों की तरफ इशारा करके कहने लगी, ये जो किराए के गुंडों को लिए तू पूरे पिंड में बड़े गरूर के साथ मंडलाता फिरता है कि ये लोग तेरी इज्जत करते हैं, तो सुन ले छोटे चौधरी, मेरी नज़र में तेरी 2 कौड़ी की इज्जत भी नहीं है। बड़ा आया अपने पैसे का रोब मुझ पर झाड़ने वाला। शमशेर ने नूरी की बात सुनी और आगे बढ़कर उसे गर्दन से दबोच लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही आदमियों के सामने जलील करने की? ये जो बकवास तूने की है ना आज मेरे साथ, मैं तुझे बता रहा हूँ, तू पछताएगी, बहुत पछताएगी तू। और नूरी भी अकड़ कर अब उसके सामने खड़ी थी। तभी दूर से गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। सबका ध्यान उस गाड़ी की तरफ हुआ तो नूरी ने फौरन से अपना बस्ता उठाया और दुपट्टा संभालते हुए वहां से भाग खड़ी हुई। चौधरी मुराद अली अपनी लाठी संभालते हुए शमशेर की तरफ आए और पूछने लगे कि तू इस तपती धूप में इधर खड़ा क्या कर रहा है? शमशेर ने खुद को संभाला और कहने लगा, ओ कुछ नहीं अब्बा जी, वो बस ऐसे ही। आप तो जानते हैं कि ज़मीनों का चक्कर लगाना होता है, और गर्मी भी तो देखें कितनी है, तो पानी पीने के लिए इधर रुका था। तो वो लड़की कौन थी जो इधर से भाग गई? चौधरी मुराद अली ने एक तरफ इशारा करके पूछा था। वो अब्बा जी, वो तो बस इधर बैठी झूला झूल रही थी, मुझे आते देखा तो डर कर भाग गई। और चौधरी साहब शमशेर की शक्ल देखकर कहने लगे कि तूने अपने हुलिये से ना जाने पूरे गांव में इतनी वहशत क्यों फैला रखी है कि सारे ही तेरे से डरते फिरते हैं। शमशेर अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, अब ऐसी भी कोई बात नहीं अब्बा जी। और चौधरी मुराद अली अपनी लाठी संभालते हुए वापस गाड़ी की तरफ चल पड़े। शमशेर ने एक गहरा सांस खारिज किया और कहने लगा, शुक्र है आज तो बच गया। नूरी एक बार तो शमशेर के सामने खुलकर बोल पड़ी थी और उसका डर भी ख़त्म होने लगा था, लेकिन शमशेर ने अपनी राह नहीं बदली थी। वो अभी भी नूरी के रास्ते में खड़ा उसको छेड़ता रहता और नूरी भी उसको बेइज्जत कर दिया करती। ऐसे ही एक तपती दोपहर थी जब नूरी अपना बस्ता उठाए स्कूल से वापस घर जा रही थी, तो उसके करीब ही एक वैन आकर रुकी और झट से वैन से 2 आदमी उतरे
और नूरी के मुंह पर कपड़ा देकर उसको वैन के अंदर खींच लिया। नूरी ने काफी हाथ पांव मारे। शोर तो वो मचा नहीं सकती थी क्योंकि कपड़े से उसका मुंह बंद था, मगर उसका हाथ पांव मारना बेकार गया और कपड़े पर लगी दवाई के असर की वजह से वो थोड़ी ही देर में बेहोश हो गई। होश में आने पर उसने देखा कि वो एक अंधेरे कमरे में बंद थी। अंधेरे कमरे में नूरी को खौफ आने लगा था। उसने अंधेरे में इधर उधर हाथ मारे मगर कुछ हाथ ना आया तो उसने ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? कौन हो तुम जो मुझे यहाँ उठा कर लाए हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कोई है जो मेरी आवाज सुन रहा है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे अपने घर जाना है। मगर उसकी आवाज किसी ने ना सुनी। वो बहुत देर तक शोर मचा मचा कर थक कर खामोश होकर बैठ गई। उसको कितनी ही देर इस कमरे में बंद हुए गुजर गई थी, मगर उसे बाहर से किसी भी किस्म की कोई आवाज नहीं आई थी। वो अपने पिछले दिन याद करने लगी कि उसने किसके साथ ऐसा बुरा कर दिया था जो वो उसको उठाकर यहाँ ले आया था। अचानक से उसको कुछ याद आया और वो माथे पर हाथ मारते हुए उठ बैठी। अच्छा, तो छोटे चौधरी, ये घनावनी हरकत भी तेरी ही है। तूने तो एक मर्द होते हुए भी बेगैरती का सबूत दिया है, जो मुझ अकेली लड़की को अपने आदमियों की मदद से उठा लाया है। लेकिन जो तू चाहता है मैं वैसा हरगिज नहीं होने दूंगी। नूरी गुस्से से चिल्ला रही थी, मगर उसकी आवाज़ कौन सुनता। अब उसने गुस्से में दीवारों पर हाथ मारना शुरू कर दिए थे। हाथ मारते उसके हाथ जख्मी हो चुके थे, मगर वो गुस्से से शमशीर को बुरा भला कहे जा रही थी। चिल्लाते चिल्लाते वो बेहोश हो गई। किसी ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। जब वो होश में आई तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसके सामने वड्डे चौधरी साहब का बेटा शमशेर नहीं बल्कि वड्डे चौधरी मुराद अली साहब खड़े थे और उनके साथ उनका एक मुलाजिम खड़ा था। चौधरी मुराद अली नासमझी से इसे तक रहे थे। नूरी को समझ नहीं आया था कि आखिर इसके साथ हुआ क्या था। अगर उसे शमशेर उठाकर यहाँ लाया था तो वड्डे चौधरी साहब यहाँ क्या कर रहे थे? वो जल्दी से आगे बढ़ी और चौधरी मुराद अली के कदमों में गिर गई और कहने लगी, चौधरी साहब, मुझे शमशेर से बचा लो। वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, इसीलिए मुझे यहाँ उठा कर लाया है। मैंने उसको मना कर दिया तो वो मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती पर उतर आया है। तभी शमशेर भी कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा, अब्बा जी, आपकी मुलजिमा आपके सामने है, आप जो चाहें इसे सज़ा दें। और नूरी नासमझी से कभी शमशेर को देखती और कभी चौधरी मुराद अली को। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या जुर्म किया था जो शमशेर वड्डे चौधरी साहब से इस तरह से बात कर रहा था। अभी वो यही सोच रही थी कि उसका जुर्म क्या है। तभी शमशेर अली आगे बढ़कर बोला, अब्बा जी, अम्मा के सोने के कंगन इसी की अम्मा ने चुराए हैं और वो ऐसे नहीं मान रही, इसीलिए मैं उसकी बेटी को उठा लाया हूँ ताकि ये सच उगल सके। ये भी अपनी माँ के इस जुर्म में बराबर की शरीक है, क्योंकि जिस रात कंगन चोरी हुए थे उस रात ये भी अपनी अम्मा के साथ हवेली में मौजूद थी और हवेली के रिहायशी हिस्से में इसकी अम्मा के अलावा किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। नूरी ने इतनी बात सुनी तो उठकर शमशेर को गिरेबान से पकड़ लिया। बेगैरत इंसान, तू इस हद तक गिर सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। तुझे किसी लड़की की इज्जत की परवाह ही नहीं है जो तू मुझे इस तरह से रुस्वा कर रहा है। और चौधरी मुराद अली की तरफ देखकर कहने लगी, चौधरी साहब, आपका बेटा झूठ बोल रहा है। तभी जनाटेदार थप्पड़ नूरी के नरम से गाल पर पड़ा और नूरी सहमकर दीवार से जा लगी। चौधरी मुराद अली ने नूरी को एक थप्पड़ जड़ दिया था और वो कहने लगे, लड़की, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को झूठा कहने की, जबकि मैं भी जानता हूं कि तेरी अम्मा पहले भी छोटी मोटी चोरियां करते पकड़ी गई है और अब की बार तो उसने हाथ भी बहुत बड़ा मारा है। पहले तो मैं उसे नादानी में माफ़ करता आया था कि शायद समझ जाए, लेकिन उसने मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। जब तक तेरी अम्मा वो कंगन वापस नहीं करेगी तब तक तू इसी तय खाने में कैद रहेगी।
नूरी को समझ आ गया था कि शमशेर अपने मकसद में कामयाब हो चुका है, इसलिए अब वो चौधरी मुराद अली को बेकार की सफाइयाँ दे रही थी, क्योंकि वो उसका यकीन नहीं करने वाला था। चौधरी मुराद अली शमशेर से कहने लगा, इस लड़की का ख़ास तौर पर ध्यान रखना, ये यहाँ से भागनी बिल्कुल नहीं चाहिए। जब तक इसकी अम्मा इकरार ना कर ले और वो कंगन मेरे हवाले न कर दे, तब तक इस पर कड़ी नज़र रखो। ये कहकर चौधरी मुराद अली वहाँ से बाहर चले गए और शमशेर ने नूरी की तरफ फातिहाना नज़र डाली और गाल पर हाथ फेरकर मुस्कुराने लगा। उसके करीब आकर शमशेर ने कहा, ये तो था उस थप्पड़ का बदला जो तूने मुझे मेरे आदमियों के सामने मारा था। अभी तो मैं तेरी ज़िंदगी ख़राब करके तुझसे अपनी बेइज्जती का बदला भी लूँगा। तू नहीं जानती कि तूने किससे पंगा लिया है। मैं शमशेर अली हूँ। लड़कियाँ तो मुझ पर मरती हैं। तुझे तो खुश होना चाहिए था कि चौधरी शमशेर अली खुद तेरे पीछे आया है, बल्कि तुझे तो अपनी किस्मत पर रश्क करना चाहिए था। और तू नाशुक्री, तूने मेरे मुंह पर ही थूक दिया। अब देख तो मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। और कह कहा लगाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। नूरी अपना सर पकड़ कर बैठ गई थी। वो किस मुसीबत में फंस चुकी थी। अगर उसकी अम्मा ने चोरी की थी तो वो अम्मा को उठाकर कैद करते। उसको क्यों कैद कर लिया था? इस बेचारी की तो उसमें कोई गलती भी नहीं थी। और बानो बेगम तो पहले ही उससे बेइंतहा नफरत करती थी। उसने तो शुक्र किया होगा कि इस वबाल से जान छूट गई। वो तो आए रोज़ अब्बा को यही कहती थी कि इस लड़की ने 2-4 जमातें पढ़ ली हैं, अब इसको इसके घर का करो। मुझसे इसका खर्चा नहीं बर्दाश्त होता। घर के और भी बहुत सारे खर्चे हैं कि अब मैं इसको ही जवान करने में लगी रहूं। इसकी शादी की उम्र हो चली है। कोई मुनासिब सा रिश्ता देखकर इसको यहाँ से चलता करो। और रज़ा ने तो वैसे ही नूरी की तरफ से आंखें और कान बंद कर लिए थे। बोलने तो बानो बेगम ने उसको पहले ही कभी नहीं दिया था। नूरी को आहिस्ता आहिस्ता अपने घर वाले याद आने लगे थे और वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसके घर वाले उसको बहुत आसानी से चौधरियों के हवाले कर देंगे, मगर उसका बाप अपनी बीवी को कभी भी चौधरी के हवाले नहीं करेगा, क्योंकि इसकी सौतेली अम्मा ने तो इसके बाप पर पता नहीं कौन सा जादू कर दिया था, जो वो नूरी की एक भी बात नहीं सुनता था। नूरी को इस कैद खाने में बंद ना जाने कितने दिन गुजर चुके थे। उसने किसी भी इंसान की शक्ल नहीं देखी थी। बस 2 वक्त की सूखी सी रोटी और फीकी सी दाल दरवाजे के नीचे से उसके हवाले कर दी जाती थी। पहले तो उसका दिल नहीं करता था कि वो उसको हाथ भी लगाए, मगर जब भूख से जान जाने लगी तो उसने उस रूखी सूखी पर ही गुजारा करना शुरू कर दिया। पानी उसको कभी मिल जाता और कभी उसके सामने ही पानी को फर्श पर गिरा दिया जाता। गर्मी तो पहले ही इंतहा की थी। अब उसकी खूबसूरती भी मान पड़ने लगी थी, मगर वो अभी भी शमशेर का मुकाबला करना चाहती थी। और वो कहती थी, शमशेर अली, मैं भी देखती हूँ, आखिर कितना दम है तुझ में। तू क्या समझता है कि इस तरह से मुझे भूखा प्यासा और बंद रखकर मुझे अपने जाल में फंसा लेगा? मैं भी नूरी हूँ। अगर मैं अपनी सौतेली माँ के जुल्म और अपने बाप की बिला वजह की डांट डपट बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो तू क्या चीज़ है? मैं तुझे तेरे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। जब भी उसको गुस्सा आता वो कमरे में टहलती हुई ऐसे ही चीखती चिल्लाती रहती। कभी कभी शमशेर उसकी ये हालत देखते कमरे में आ जाता और उसको इस तरह से चीखता चिल्लाता हुआ देखकर वो बहुत खुश होता और कहता, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरी बात मान जा, मगर तू ना मानी और तेरी अकड़ मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुई थी। आखिर तुझ में अकड़ है किस चीज़ की? थोड़ा बहुत हुस्न ही तो था जो खुदा ने तुझे दिया था, उसके अलावा तेरे पास है ही क्या? तूने जिस तरह से मुझे ठोकर मारी है, मैं तेरे हुस्न को ऐसे ही बर्बाद कर दूंगा और सारा गांव देखेगा कि शमशेर अली को इनकार करने का क्या नतीजा होता है। और नूरी बेचारी एक तरफ सिमटी हुई बैठी उसकी बकवास सुनती रहती। वो जानती थी
کہ شمشیر نے اپنے باپ کو نہ جانے کس طرح سے اعتماد میں لیا ہوا تھا، اور جب تک چودھری مراد علی کو یقین نہیں آ جائے گا کہ نوری بے قصور ہے، وہ اس قید خانے سے نہیں نکل سکے گی۔ ایسا ہی ایک تپتا دن تھا جب نوری سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب شمشیر کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں کچھ برتن تھے۔ وہ نوری کے پاس آیا، اس کے قریب بیٹھا اور کہنے لگا، دیکھ، آج میں تیرے لیے تازہ تازہ کھانا لے کر آیا ہوں۔ اب میں اتنا بھی بے حس نہیں ہوں کہ روکھی سوکھی کھلا کر تیرا حسن ہی خراب کر دوں۔ آخر تو تجھے میرے پاس ہی رہنا ہے، اس لیے تیرے حسن کو بھی برقرار رہنا چاہیے۔ نوری نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ اٹھا کر دیوار پر دے ماری، اور شمشیر کو اس کی اس حرکت پر بے انتہا غصہ آ گیا۔ اس نے زوردار 2 تھپڑ نوری کے منہ پر لگائے اور کہنے لگا، کتنا عرصہ قید میں رہ کر بھی تیری عقل ٹھکانے نہیں آئی؟ میں تو سمجھا تھا کہ شاید تیری عقل میں کوئی بات آ گئی ہوگی، مگر تو پہلے سے بھی زیادہ اکڑ رہی ہے۔ تو بھی جانتی ہے کہ تیری اماں نے وہ کنگن نہیں چرائے، اور نہ ہی وہ کنگن تیرے پاس ہیں۔ اور جیب سے 2 کنگن نکال کر اس کے سامنے کیے، کیونکہ وہ کنگن تو میرے پاس ہیں، اور میں نے ہی ابا کو تیرے بارے میں بتایا کہ اس دن کھیتوں میں بھی جب مجھے تو ملی تھی تو میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اپنی اماں کو سمجھا دے، وہ اس طرح کی چوریاں نہ کرتی پھرے، یہ نہ ہو کہ کسی دن پکڑی جائے۔ اب کی بار میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ کنگن سب کی نظروں سے بچا کر اپنے پاس محفوظ رکھے، اور تیری اماں پر الزام لگا دیا۔ اور ابا تو جانتا ہی تھا کہ تیری اماں پہلے بھی چوریاں کرتی رہی ہے۔ تیری اماں کو سزا دینے کے لیے ہی میں تجھے اٹھا کر حویلی لایا تھا، اور ابا نے بھی میری بات کا یقین کر لیا تھا۔ اب جب تک کنگن نہیں ملیں گے میں تو تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اور زوردار کہا لگا کر ہنس پڑا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ چودھری مراد علی اس کے پیچھے ہی کھڑے یہ ساری گفتگو سن رہے تھے۔ تبھی ایک زوردار آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا۔ نوری تو حیران ہوئی تھی، شمشیر کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے لگی تھی جب اس نے اپنے سامنے چودھری مراد علی کو دیکھا۔ چودھری مراد علی نے آگے بڑھ کر اپنی لاٹھی کے ساتھ ہی شمشیر علی کو مارنا شروع کر دیا، اور ساتھ میں اسے گالیاں بھی دینے لگے کہ بے غیرت، تو اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے، میں نے تو نہیں سوچا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ خرابی کسی اور میں نہیں بلکہ میرے ہی خون میں تھی۔ مجھے تو لوگوں نے بہت کہا تھا کہ چودھری صاحب اپنے بیٹے کو سنبھالے، مگر میں ہی پاگل تھا جو لوگوں کی باتوں پر یقین نہ کر سکا، اور ہمیشہ تیرا بچاؤ کرتا آیا کہ نہیں، میری اولاد ایسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تو نے زمینوں کا سارا کام بہت اچھی طرح سے سنبھال رکھا تھا۔ اگر مجھے پہلے ہی اندازہ ہوتا تو میں تو تجھے کب کا مار چکا ہوتا۔ تو نے میری آزادی کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ تو نے ایسی کون سی وحشت پھیلا رکھی ہے جو ہر کوئی تجھ سے ڈرتا پھرتا ہے، مگر تو ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا کرتا تھا۔ آخر کیا کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں جو تو نے مجھے آج یہ دن دکھایا؟ میں نے تجھ پر بھروسہ کر کے ایک بے گناہ لڑکی کو اتنا عرصہ قید میں رکھا۔ وہ بیچاری میرے سامنے گڑ گڑاتی رہی کہ چودھری صاحب میرا یقین کریں، مگر میں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا، کیونکہ میری آنکھوں پر تو نے اپنے اعتماد کی پٹی باندھ دی تھی۔ چودھری مراد علی شمشیر علی پر لاٹھیاں برسائے جا رہے تھے۔ تبھی نوری نے آگے بڑھ کر چودھری صاحب کو روکا اور کہنے لگی، چودھری صاحب، میں نے آپ کو بہت بار کہا تھا کہ میری بات کا یقین کریں، مگر آپ نے یقین نہیں کیا، اس لیے آپ کو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، اور آپ کی وجہ سے میرے اماں، ابا اور بھائی بھی مجھ سے بدظن ہو گئے ہیں۔ اس انسان نے تو مجھے کچھ دن قید میں رکھ کر جو میرے بچے کچے رشتے تھے ان کو بھی میرے خلاف کر دیا ہے۔ آپ بتائیں ان سب میں میرا کیا قصور تھا؟ اب میں کہاں جاؤں گی؟
चौधरी मुराद अली ने नम आंखों के साथ नूरी के सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, जिस कैद खाने में तू आज तक कैद रही है, अब इसी कैद खाने में ये बेगैरत इंसान कैद रहेगा और तुझको मैं अपनी बेटी बना कर रखूँगा, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि जिसको मैं अपना बेटा समझता था वो तो असल में आस्तीन का सांप निकला। इसने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी है। मैंने तो सारे गांव में बड़ी इज्जत बना कर रखी थी। अगर इसके इन करतूतों का गांव वालों को इल्म हो गया तो वो तो मुझ पर थूकते फिरेंगे। इसलिए आज से ये गांव वालों की नज़रों में मर गया है और अब इसकी शक्ल कभी भी कोई नहीं देख सकेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।